Well, good morning, friends. Today, after completing section 54 theory and sums, we are moving further the discussion based on section 54 EC. First, we will try to understand the theory, the concept, the exemption conditions of section 54 EC. Then, further, we will try to calculate certain sums based on it. So, let us try to understand which type of assets are covered in section 54EC for an SSC to get an exemption as per Income Tax Act 1961. So the capital gain arising from the sale of any long-term asset, from the sale of any long-term asset. So each and every assets are covered under section 54EC. In case of 54, only residential house were covered. There was only one property that was taken into consideration in section 54. But in case of 54EC, any long-term capital asset, if it is sold, it may be taken as benefit in case of section 54EC. So let us see. Old assets sold may be any long-term capital assets, any. It may be house property, residential or non-residential. It may be land, building. It may be jewelry. It may be shares. It may be bonds, mutual funds, any type of capital asset sold. But new investment must be made only in long-term specified bonds. Old assets sold may be any assets, any long-term asset if it is sold, no problem with that. But you have to follow in which asset you are supposed to make investment. What should be the new investment pattern? It is fixed. Any after selling any long-term capital asset, you are supposed to make investment only in long-term specified bonds. Okay, now capital gain arising from the sale of any long-term capital assets, which includes land, building, both whether used for residential or non-residential purpose. So even the house property is included in section 54EC. That clarification is been given over here. And reinvesting in long-term specified bonds. So to avail exemption condition, there are approx 5 conditions that are required to be fulfilled first. So let us try to understand that exemption conditions first. सेक्शन 54 इसी का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए ये 5 शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है. These conditions must be satisfied to avail the exemption benefit exemptions as per section 54 EC. तो पहली शर्त देखते हैं. Asset sold by an SSC is any long term capital asset. कोई भी long term capital asset बेचा हो चलेगा. Second, such assets has been sold during the previous year. कॉमन कंडीशन है. प्रीवियस ईयर में ही एसेट बेची हुई होनी चाहिए. 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, उसी साल में वो एसेट बेची हुई होनी चाहिए, सोल्ड. थर्ड कंडीशन पे चलते हैं. द एसएससी मस्ट हैव इन्वेस्टेड द होल और एनी पार्ट ऑफ कैपिटल गेन within a period of 6 months. Within a period of 6 months after the date of sales. After the date of sales. After condition is there in the long term specified assets only, or we can say bonds only. जो भी एसेट बेची है उस एसेट में से जो गेन हो रहा है उस गेन का री इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट, वो 6 महीने के अंदर कर देना. आफ्टर सेलिंग 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ यू आर सपोज टू मेक इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और फिक्स लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर ही करना है. Now, what are long term specified assets? That has been clarified in fourth condition. It means any bonds assets over here are long term specified assets over here are any bonds issued for 5 years and notified by the central government.
5 साल के ड्यूरेशन के होने चाहिए और ये बॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू कर रही है वही होने चाहिए। और यहाँ स्पेसिफिकली दो बोल दिए हैं, NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स परचेज किए हो तो बेनिफिट मिलेगा, या आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स परचेज किए हो तो बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट में NHAI और RECL आपको याद रखना है। तीसरा भी बॉन्ड्स हो सकता है, दैट बॉन्ड्स आर नोटिफाइड बाय एनी अदर बॉन्ड्स विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई तीसरा बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है तो वो बॉन्ड्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। फिलहाल दो ही है, तीसरा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करने के लिए रेडी होती है तीसरे का भी फायदा मिल सकता है। इसकी एक मैक्स लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम फायदा आपको कितने रकम का मिल सकता है सर? द इन्वेस्टमेंट इन सच बॉन्ड मेड बाय एन SSE ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। 50 लाख से ज्यादा का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपने बॉन्ड्स 50 लाख से अगर ज्यादा परचेस कर लेते हो, मान लीजिए NHAI के आपने 30 लाख के बॉन्ड्स खरीदे, RECL के 30 लाख के बॉन्ड्स खरीदे, तो 60 लाख हो गए, 60 लैक्स। आपको फायदा 50 लाख से ज्यादा का नहीं मिलेगा। एग्जाम्पशन में मैक्सिमम 50 लैक्स तक का बेनिफिट हम ले सकते हैं, तो उसकी मैक्स लिमिट भी है 50 लाख। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ सब्स। एक स्पेशल नोट है इससे जुड़ी हुई, investment made in long-term specified assets, that means the bonds considered for the purchase of exemption under this section, अगर यहाँ हम इसको ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो ETC में हम इसको अलग से इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ETC अलग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, वहां पे आप एक बार अगर आपने कोई एग्जम्पशन बेनिफिट यहाँ ले लिया है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ एग्जम्पशन ले लिया है, इस कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यहाँ आपने ले लिया है, तो आप अलग से ETC का बेनिफिट यानी दो बार एग्जम्पशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट आपने किया है टैक्सेशन रूल के हिसाब से आप एक ही बार एग्जम्पशन में ले सकते हैं, दो बार एग्जम्पशन में नहीं ले सकते। 54AC में भी आप एग्जम्पशन में ले रहे हो और 80C में भी अगर आप ले रहे हो तो दो बार एग्जम्पशन हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जम्पशन नहीं लेना। अब इसके एग्जम्पशन की अमाउंट मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं वह तो हमने देख ली है, 50 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन कितना अमाउंट हमें एग्जम्पशन में मिल सकता है, तो सर दो सिंपल से रूल्स हैं इसके। इफ द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मींस द बॉन्ड्स इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, द एंटायर गेन शुड बी कंसिडर्ड एग्जम्प्ट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रकम ज्यादा है, आपने जो बॉन्ड्स खरीदे जैसे मैंने अभी कहा 60 लैक्स, वो ज्यादा है, और हमारा गेन मान लीजिए 40 लैक्स का ही है, तो हमें पूरा फायदा मिल जाएगा 40 लैक्स का, क्योंकि हमारा गेन 40 लैक्स का और हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो हमें 40 लैक्स का पूरा फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो तो इफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ गेन, तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 40 लैक्स का है और आपने बॉन्ड्स 30 लैक्स के खरीदे, तो आपको फायदा 30 लैक्स तक का ही मिलेगा, और रिमेनिंग 10 लैक्स पे आपने पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो इस तरीके से इसका आपने वैल्यूएशन करना है। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर